we have Murtaza sir. Sir, now you are host. Is I audible? Is anybody confirm it? Is I audible? Yes, Ikra. Yes, ma'am. Hi, good evening, guys. I'm optometrist Ikra Jamal Khan, and welcome to Optometrist Spirit Session 3. So today we have Murtaza sir, and if you have any query about the progressive lenses, so you can write on chat box. And please, guys, I request to all of you, please mute yourself because इससे क्या होगा, disturbance कम होगा and clearly सबको समझ जाएगा, ठीक है? And extremely sorry, sir, for wait. That's completely fine. Okay. So basically, I was just waiting for more people to join in, and I think now with the tone set in, I would welcome all of you for this, and thank you, Ikra, for giving me this opportunity to talk to all the people here. First of all, thank you all of you for taking out your time joining this meeting. Basically, guys, आप लोग ने देखा होगा कि most of the time what we do is we come up with a presentation and we take a class on it. I am basically a person who would like to keep it interactive, and what I want from all of you is you can be vocal, you can interact in between, you can raise your question in between, and then we will take it forward, right? So आज की topic है a little different topic. Any questions that you have on progressive, bring it on, and we will try to give you the best possible solution to it, right? And basically हम ये कहना चाहते हैं कि आपको जो भी सवाल हो in your day-to-day practice, if there is any questions that is coming up, you can always put it across. I can see one or two known people who has joined this who will really feel difficult if it is in Hindi. So I'll keep it in English and Hindi both, right? I think most of you are good with Hindi, but there are 2-3 people whom I know personally who has joined this Zoom, and they might have some questions. So we will actually keep it both in English and Hindi, right? Okay for all? Yeah. Yeah, thank you so much. Okay. So basically, Ikra, I would request you to help me with questions one by one, and I'll start answering them from the chat box. Yeah. And also, people who are here who wants to ask directly, they can unmute and please ask questions. No problem. So, Ikra, we can start. Yeah. Yes, sir. We have one question. First question. So, we can progressive glasses be advised to unifocal patient? Unifocal. Sorry. Unifocal patients like जिनके one eye में, I think Zubair sir का है ये question. One-eyed patient. One-eyed patient. Right, sir. One-eyed patient. Okay. Basically, progressives are contraindicated. Contraindicated मतलब हमें one-eyed patients को नहीं देना चाहिए, लेकिन इसमें भी बहुत ifs and buts हैं. मान लो अगर पेशेंट को अपनी एज छुपानी है, he is using ocular prosthesis in the other eye, and प्रोग्रेसिव को अडैप्ट करने के लिए तैयार है, तो हम प्रोग्रेसिव दे सकते हैं, राइट? इवन फॉर द वन आइड पेशेंट. वन आइड पेशेंट में नहीं देना चाहिए. बेसिकली जब आपका कस्टमर या आपका पेशेंट व्हेन ही इज ऑलरेडी इन हिज 50s and 60s एंड ड्यू टू एक्सीडेंट अचानक से वन आइड हो गए, तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती है, जैसे डेप्थ परसेप्शन नहीं रहता है. सेकेंड थिंग, इफ दे आर ऑलरेडी यूज्ड टू बाइफोकल, प्रॉब्लम होगा, आप प्रोग्रेसिव नहीं दे सकते हो. एंड वन आइड है, इसलिए साइड का जो पेरिफेरल विजन होता है, as you all of you know that there will be some peripheral disturbances in the progressive lens, right? So these peripheral disturbances will cause peripheral field में clear vision नहीं रहेगा. तो it is ideal that अगर one eyed patient है तो आप बहुत सोच समझ के डिसीजन ले
राइट? अगर उनकी एडिशन पावर कम है, ठीक है, अगर एडिशन 1.25 1.5 है तो ठीक है, लेकिन अगर बाई एक्सीडेंट या फिर कुछ होने की वजह से उनके 50s एंड 60s में वन आइड हो रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट नॉट टू गो इन फॉर अ प्रोग्रेसिव। आप वन आइड के लिए सजेस्ट मत करना। ओके, सो shall we move on to the next question? I think Ikra, before reading, Amit wanted to ask something. Maybe Amit, if you want to ask something directly, you can just go on. हाँ, yes sir, I have a one question. सर, जैसे किसी का PD 28 है, राइट, एंड उसको एविएटर पसंद आया एंड उसने एविएटर में प्रोग्रेसिव मार्किंग करानी है, सो हाउ कैन वी डू इट ऑन एविएटर? एंड उसका PD अगर 28 है और उसके डिस्टेंस में माइनस पावर हाई है, तो अभी ये केस हुआ था रिसेंटली लेंस कार्ड पे, और उन्हें एविएटर पसंद आ गया, तो मैंने उनसे डिनाई किया कि मतलब एविएटर्स आपके लिए बेस्ट नहीं है, आप दूसरा ले लो। उन्होंने ले तो लिया, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में क्वेश्चन सेट हो गया कि ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब एविएटर्स में हम लोग ऐसे नैरो PD में और एविएटर्स रिकमेंड कर सकते हैं प्रोग्रेसिव? ओके, तो बेसिकली अगर हम डिस्पेंसिंग की बात करें इन टुडेज वर्ल्ड, कस्टमर को जो चाहिए वो देना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर आर वेरी डिमांडिंग दिस डेज, क्योंकि वो चश्मे को सिर्फ एक नॉर्मल रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन करने का चीज नहीं समझते, दे ट्रीट इट लाइक अ फैशन डिवाइस, ठीक है। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इकरा आस्क्ड इज एविएटर शेप। आप सभी ने देखा होगा, मैंने वीडियो इसलिए ओपन रखा है क्योंकि लाइक आई विल जस्ट शो यू, ये जो मेरा चश्मा है, ठीक है, इट इज मोर फ्लैटर, लेकिन एविएटर जो होता है यहाँ से कट होता है, ठीक है। तो जैसे कट बढ़ रहा है, आपकी रीडिंग जो है कटने के चांसेस है। अभी ऐसा कोई स्टैंडर्ड क्लॉज नहीं है कि एविएटर में हमें चश्मा नहीं देना है या प्रोग्रेसिव नहीं देना है। आप एविएटर में प्रोग्रेसिव दे सकते हो अगर PD बड़ा हो तो। PD जो इकरा ने बताया 28 mm, उसमें देयर आर हाई चांसेस के नियर जोन कट जाएगा। So it is imperative that we check for the PD first. कोई भी कस्टमर if they are demanding for aviator shape, check for the PD. And अगर PD, मेरे एक्सपीरियंस में देखा है कि अगर PD 32 के आसपास है तो आपको डिसेंट डेप्थ मिलता है जहाँ पे रीडिंग एरिया फ्रेम के अंदर आ जाएगा। ओके, सो यू गेट अ डिसेंट फिटिंग हाइट एंड the reading circle gets covered within the frame, तो आप दे सकते हो। तो एक सिंपल लॉजिक आप याद रखो, if you are going to give aviator, जब कस्टमर बोल रहा है कि I want progressive in an aviator, take a PD meter first, check the PD. अगर PD is lesser than 32, there are high chances that this customer might not get adapted to a progressive because high chances of reading zone getting cut. Right? If the PD is 32 and above, high chances of near circle coming inside the frame. So ideally, Ikra, what you asked, I would actually avoid, or I would clearly tell the customer that aviator frame is not a right choice for the PD that you mentioned. 28 mm के लिए I would not give a aviator frame. सर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम एविएटर फ्रेम देते हैं तो क्लाइंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इट मींस पेरिफेरल विजन है वो डिस्टॉर्टेड हो सकता है, नियर विजन डिस्टॉर्टेड हो सकता है, और क्या हो सकता है उसमें? एविएटर में सबसे पहले अगर आप देख रहे हो तो अगर PD बड़ा है, आंखों के सेंटर में आ रहा है, इफ इट इज इन द सेंटर, देन यू विल नॉट हैव मच ऑफ अ प्रॉब्लम। बट इमेजिन दिस वे, अगर आप मेरी आंख देख रहे हो, यू कैन सी ARC, राइट? मान लो ये ARC पैच अगर मेरी नेजल साइड पे है, तो ये जो टेम्परल का लेंस है, उतना एक्सेस लेंस इज एक्चुअली कमिंग इनसाइड, सो मोर पेरिफेरल डिस्टॉर्शन विल कम इनसाइड माय आई। तो जितना बड़ा लेंस होता है उतनी आंख घुमा के हम देखते हैं। द मोर द साइज ऑफ द लेंस, द मोर द पेरिफेरल फील्ड एरिया वी यूज, तो लेंस के डिस्टॉर्शन ज्यादा फील होते हैं। लेंस में डिस्टॉर्शन बढ़ता नहीं है, लेकिन if you are getting more part of distortion within the frame, you will feel that getting adapted to the lens is really difficult.
तो अगर पीडी छोटा है, आप द क्वेश्चन 28 mm, 28 mm मींस इट इज वेरी क्लोज टू द नेजल साइड। तो जितना भी पेरिफेरल पोर्शन है दैट इज गोइंग टू कॉज यू डिस्टर्बेंस, दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, एविएटर बहुत शार्प है यहाँ पे, तो द रीडिंग जोन इज गोइंग टू गेट कट। अगर वो थोड़ा सेंटर्ड है then you will not have that problem. Reading circle will come within the frame. But if it is very close to the eye, then the reading circle will get cut. तो इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है कस्टमर को? They will have more peripheral disturbances. तो साइड में देखने के टाइम पे they will feel little problematic. Near zone नहीं मिलेगा तो they will keep searching for the near area, right? Because near area is cut, comfortable near vision नहीं रहेगा. But if the PD is bigger and if you have a good depth available, आप आराम से कर सकते हो। अगर मुझे इतना टेक्निकली नहीं जाना है, सिंपल रखना है, तो मैं जैसे मैंने बताया हैव अ बेंचमार्क ऑफ 32 पीडी, क्योंकि मोस्ट ऑफ योर एविएटर शेप यू विल सी दैट 32 प्लस वाले पीडी दे स्टिल गेट एडजस्टेड, क्योंकि आपको डिफरेंट कॉरिडोर ऑप्शन भी मिलते हैं। आप शॉर्ट कॉरिडोर के साथ जा सकते हो एंड स्टिल इट गेट्स अडैप्टेड। ठीक है, व्हाई वी आर एक्चुअली वर्किंग अराउंड विद द फ्रेम लाइक दिस, एज आई टोल्ड, अभी spectacles are considered to be a fashion accessories. कस्टमर अगर प्रोग्रेसिव के साथ जाना चाहेगा तो उसमें एडेड वैल्यू भी है, बजट भी बढ़ जाता है, so he would demand what he wants. So basis that we will be actually dispensing him what is required. Thank you so sir. much. Thank you, sir. Again Thank you. request to all of you, please mute yourself, so इससे disturbance कम create होगा. And now we take next question from Optum Muzammil. What should be the ideal distance of corridor in progressive lenses? Ideal distance of corridor, अगर मुजम्मिल आप Yes. पे हो तो if you can unmute and tell me मतलब exactly corridor आप क्या mean कर रहे हो, because I just wanted to understand you want a depth of the frame. Yes, sir. I was asking regarding the depth only. Depth, right? सर क्योंकि जो सर रीडिंग जो होता है सर, रीडिंग जोन एंड इंटरमीडिएट एंड डिस्टेंस जोन, तो वो सर फ्रेम के सर डेप्थ के रिगार्डिंग जो सर आउटर जो सर स्पेस बचती है, आई वुड रादर से इट एज आपका रिडोरी हुआ सर वो एक फ्रेम का, उसकी सर एक आइडियल सर लेंथ क्या है? Okay. मतलब जिससे सर हमें ये पता ये चल सके कि हमारा जो सर लेंस जो सर फिट हुआ वो प्रॉपर्ली फिट है फॉर एन आइडियल फिटिंग। So basically अगर आप देखोगे तो any frame that has a B size of 30 mm, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक the total length should be 30 mm. Why I say 30 mm? Top 10 will be for your distance, center 10 is for your intermediate, bottom 10 is for your near. ठीक है, तो फ्रेम को कभी भी हमें वैसे देखना है 1/3 3 पार्ट में फ्रेम डिवाइड होनी चाहिए। और जब भी आपके कस्टमर फ्रेम पहन रहे हैं तो आंखों की लाइन जो है, मान लो अगर इस फ्रेम को मुझे 3 में डिवाइड करना है, 1 2 लाइन है, ऊपर वाली लाइन पे मेरी आंख की प्यूपल जो है वो मैच होनी चाहिए। इफ ऊपर वाली लाइन पे मेरी आंखों की प्यूपल मैच होगी, इट विल बी इजियर फॉर मी टू डिस्टेंस अ प्रोग्रेसिव, क्योंकि प्रोग्रेसिव का जो डिस्टेंस पोर्शन है, इंटरमीडिएट पोर्शन है, नियर पोर्शन है, तीनों मेरी आंखों के सामने इक्वली डिवाइडेड होगा। राइट नाउ क्वेश्चन कम्स, I just saw a pop-up message कि 10 मिनट ये Zoom रहने वाला है। I'll request all of you to join back if it gets disconnected. So now the question is, अगर आपका B साइज बड़ा है, ठीक है, क्योंकि अभी नए फ्रेम्स आने लगे हैं जहाँ पे आप देखोगे कि इट इज राउंड, इट इज वेरी डीप, ठीक है, और आपको 40 मिलता है, 42 मिलता है, 44 मिलता है। जनरली यहाँ पे एक कंफ्यूजन सबको ये रहता है कि अगर B साइज बड़ा है तो रीडिंग जोन तो एक जगह पे आके खत्म हो जाएगा, उसके बाद नीचे क्या रहता है, राइट? ये सबको एक कंफ्यूजन रहता है। बट बेसिकली अगर जब आप देखोगे जो भी लेंस फिट होते हैं, रीडिंग जोन एक्सेस करने के लिए जनरली आप क्या करोगे, जब आपको पढ़ना है, व्हेन यू हैव अ रीडिंग चार्ट, आपको चिन ऊपर करना होता है। जब आप चिन ऊपर करते हो, व्हेन यू रेज योर चिन, द मोमेंट यू आर एबल टू सी द रीडिंग क्लियर, यू स्टॉप। उसके बाद आप नीचे जाके और क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं देखते हो। ओके, सो बेसिकली अगर आपका बी साइज बड़ा भी है
और आप प्रोग्रेसिव डिस्पेंस कर रहे हो, आपको उसमें प्रॉब्लम। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज यू नीड टू टेक अ प्रॉपर फिटिंग हाइट। अगर आप प्यूपल से लेके जो डीप पार्ट है फ्रेम का, अगर वो ठीक से नहीं रिकॉर्ड करोगे तो आपको फिटिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा। फिटिंग में प्रॉब्लम आएगा तो नियर जोन नीचे चला जाएगा, नियर जोन नीचे चला जाएगा तो you will have all the associated problems. Yes, it will not get adapted to your customer. Okay, thank you sir. ठीक है? Yeah, sir, I have one question. Yes. Sir, अगर एक हमने कंप्लेन देखा था कुछ दिन पहले, सब कुछ प्रॉपर था, मैंने फिटिंग हाइट एवरीथिंग इज ओके, बट वो क्लाइंट जब देख रहा था ना तो उसको जो जब पढ़ने की कोशिश कर रहा था ना तो उस बुक जो है ना उसको टिल्ट दिखाई दे रहा था, और मतलब मोबाइल ले रहा था तो उसको टिल्ट दिखाई दे रहा था, टिल्ट दिख रहा था यार, राइट? प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, मतलब कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे इस चीज को, प्लीज एक्सप्लेन। ओके, सो अमित, आई विल जस्ट रिपीट दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश आल्सो। जैसे मैंने बताया, कुछ कलीग्स और फ्रेंड्स है जो हिंदी ज्यादा नहीं ये कर पाएंगे, तो आई एम जस्ट रिपीटिंग अमित्स क्वेश्चन अगेन इन इंग्लिश। ही वांट्स टू नो कि देयर वाज अ ट्रबल शूटिंग व्हिच केम अप wherein the book or any near device was looking tilted. So what has to be done in this case? Basically, अगर आप progressive troubleshooting के बारे में, like, you know, if we are discussing, it is a huge topic in itself. But I'll just try to make it simple. Whenever a person complains about the screen being bent, ठीक है, आपका लैपटॉप स्क्रीन इफ इट इज स्लाइटली बेंट हियर एंड देयर, और द रीडिंग डिवाइस इज बेंट, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। ओके, वन थिंग इज either you are seeing screen bigger on the top, smaller at the bottom, or smaller at the top, bigger at the bottom. तो एक V में हो सकता है या A साइज में हो सकता है। So people will tell this, अगर if they say ऐसा दिख रहा है इमेज, okay, if it is in A size, then you know what happens is basically फ्रेम का जो टिल्ट होता है, पेंडोस्कोपिक टिल्ट, इट इज मोर, एंड आपको टिल्ट कम करना है। तो टिल्ट कैसे कम करोगे? ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू ब्रिंग इट आउट। ठीक है, तो फेस से जो लेंस की बॉटम लाइन है ये थोड़ी बाहर आनी चाहिए। वी अगर दिख रहा है तो फेस चीक्स के पास द बॉटम लाइन शुड गो इनसाइड। सो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट एडजस्ट योर टेम्पल्स को एडजस्ट करने से ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। कमिंग टू द सेकेंड प्रॉब्लम वेयर यू विल से इट इज टिल्टेड, ठीक है, तो इसमें कैसे हो सकता है कि एक लाइन ठीक है, एक लाइन ऐसी है, राइट, या फिर ऐसी है। नाउ दिस इंडिकेट्स दैट वन ऑफ योर पीडी इज एक्चुअली गॉन फॉर अ टॉस। किसी एक आपका पीडी सही से फिट नहीं हुआ है, जिसके लिए आपके कस्टमर ये कंप्लेन कर रहे हैं। क्लियर? सो टिल्ट हैज टू फंडास। फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज पूरा जो इमेज है या तो आपको बी की तरह दिख रहा है या तो ए की तरह दिख रहा है। क्लियर? इफ इट इज ए दैट मीन्स आपको चश्मा बाहर लाना है, टिल्ट को कम करना है। इफ इट इज वी दैट मीन्स वी मतलब नीचे जो कम हो रहा है, रीडिंग जोन कम हो रहा है, तो रीडिंग थोड़ा बढ़ाने के लिए आपको टिल्ट को बढ़ाना है, राइट? द अदर ऑप्शन इज इट इज स्ट्रेट एंड इट इज टिल्ट। दैट मीन्स यू नो वन लाइन इज स्ट्रेट, स्क्रीन का एक लाइन, be it a reading material or be it your laptop screen, one part of screen is good but the other part is tilted. Agar tilted hai, it will give you an indication that one of the eye lens has gone for, the PD has gone for a toss. ठीक है, PD in हो गया होगा या out हो गया होगा। Based on that you have to start troubleshooting. Remember, it is very important that before coming to any conclusion, it is very important that you record all the data. अगर customer already progressive user है, you should record all the previous data in a chart wherein you will record vision क्या है, at what point it was fitted, what is the fitting height of the old spectacle, what is the fitting height of the new spectacle. At times ये भी हो सकता है, it is very rare but I have seen in my experience कि कस्टमर गलत पीडी पे पहना है एंड उसमें अडैप्ट हो गए हैं, ठीक है, एंड अभी आप सही पीडी दे रहे हो
still to your right PD, correct PD, they are not able to get adapted. ऐसे भी होता है. तो it is always good to see old spectacles. Old spectacle में measurements क्या है वो भी आप देख लें एक बार, and then you have to get into the troubleshooting, right? Right, sir. It means PD बराबर नहीं था, right? अगर आप टिल्ट बोल रहे हो तो मैंने जैसे बताया अमित, हो सकता है PD गलत हो सकता है PD गलत, Yes. क्योंकि टिल्ट का दो मतलब जैसे मैंने बताया कि एक सिर्फ एक बॉर्डर पे टिल्ट होता है, एक दोनों बॉर्डर टिल्ट होता है. दोनों बॉर्डर है तो आप पैंटोस्कोपिक टिल्ट एडजस्ट करोगे तो वो हो जाएगा. एक बॉर्डर है तो आपको PD एडजस्ट करनी होगी. PD एडजस्ट नहीं होती है, एक mm का फर्क है, देन यू कैन इंक्रीज द रैप एंगल एंड इट वर्क्स. लेकिन 2 mm के ऊपर है तो फिर आपको लेंस चेंज करना होता है. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay, so shall we move on to the next question, Ikra, or shall we, join back? Sir, I think we should join back because we have a less time, and the next question. So next question sort out then let's have time sheet. Okay, so let us join back, guys, on the same ID. Yes, sir. I request to all members, please leave this meeting.